का जो पैर होता है उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर लास्ट काम आती है. So there are various last types. Important is when you want to buy a good shoe, you want to ask the person which last it is made on. But if you go to fashion shoes brands like Aldo, Clarks, they won't be able to tell you which last it is made on. Aldo shoes are pointed. The Clark shoes, because it's a British name, वो थोड़ी से आगे से ब्रॉड होती है. तो अगर आपका पैर आगे से थोड़ा ब्रॉड है तो यू हैव टू गो टू क्लॉक्स. अगर आपका पैर नैरो है, लंबा है, यू हैव टू गो टू ऑल्डो. बट इसका फ़ायदा क्या है अगर हम यहाँ बात करें, आपकी वीडियो देखें और मैं आपको इंस्पायर ना करूँ टू एक्सेस इवन बेटर क्वालिटी शूज़. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ what are the other brands than just Aldo and Clarks and multiple other brands that people access? The thing is, इंडिया में बहुत सारे शू मेकर्स नहीं आए हैं. कन्वेंशनल नाम है बाटा, जो बहुत सारे लोग, आपके पापा ने, मेरे पापा ने पहने हुए बाटा के जूते, अच्छे जूते बनाते हैं. बट अगेन दैट इज़ नॉट एन इंडियन नेम. बट इंटरेस्टिंगली आजकल नए इंडियन नाम आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक नाम जो स्टैंड आउट करता है उसका नाम है ब्रिडलिन. ब्रिडलिन शूज़ is a brand by this family in Chennai. They have been into shoemaking for a very long time, and they make high quality shoes which are Goodyear welted or Blake stitched. ये इसको हम एक्सप्लेन करेंगे Goodyear welting और Blake stitching को separately, but they make world class shoes. Pricing 20,000 plus. Next question: what if I want to buy shoes around 8 to 9,000 rupees? Well, in that price, Clarks is a very good brand. Clarks के अलावा और किसी ब्रांड को आप मत देखिए, because Clarks has been making shoes for a very long time, decades and decades. They really know how to make good shoes at a good price. Clarks is your brand to go to if you are looking at shoes in that price range, 8 to 10,000 rupees. Why should I spend 5-digit numbers on a shoe like 9,999 के ऊपर मैं कैसे जाऊँ? See, the fact is, you have to look at not value for money, but the value your shoes will deliver. Look at this. When you are at your office, you are in the office starting with when you wear your shoe in the morning when you are leaving your home, but until the time you come back. In a city like Bombay, you are actually out for at least 10 to 11 hours. 11 घंटे डेली आप जूते पहनते हैं for 5 days at least. Don't you think the thing that adorns and is with you and adorns your feet for 11 hours should be of high quality? That's my argument for looking for value and not value for money. Because ये चीज़ आपके पास है. Comfort बहुत ज़रूरी होता है. Plus, these things represent you, your personality, who you are. इसीलिए aesthetics, the way the product looks is also very important. Shabby looking जूते बहुत लोग पहनते हैं with all due respect, and they also spend money. आराम से खर्चा करके पहनते हैं. For lack of knowledge, they are unable to access the right brands. Clarks gets it right. Sub 10,000, around 9,000 rupees, they make very good looking, very comfortable, high quality shoes. But if you can spend a little more, like less than 12,000 rupees, 13,000 rupees, you can go to Aldo and you can also go to Dune. Dune के जूते भी बहुत well made, high quality होते हैं. But ये सोचिएगा कि ये जूते 3 साल 2 साल से ज़्यादा नहीं चल रहे because of the quality of construction. Aldo is charging you 15,000 plus for an okay kind of shoe, but a good looking shoe. Understood? They will make a lot of style. They will do Chelsea's, they will do Brogues, they will do Oxfords, they will do slip-on, penny loafers, etc. Options सारे मिलेंगे और good looking, nicely finished options मिलेंगे. आप बहुत अच्छे दिखेंगे. Okay, that's what Aldo will do for you. So if your budget is 13,000-14,000 rupees, Aldo, and if possible, Dune. Dune is very good. Interesting question. Who should spend more than 20,000 rupees? So the thing is, if you are a person, अगर आप 2 लाख पर मंथ पोस्ट टैक्स से ज़्यादा कमाते हैं, you are a good candidate to spend at least 20,000 rupees on a good quality Goodyear welted pair. I'll tell you why. ये जो जूता है ना, ये जूता will stay with you for 7 to 8 years. Even if you wear it for 11 hours a day,
बिकॉज गुडियर रेल्टिंग जो कंस्ट्रक्शन होता है बड़ा स्टडी कंस्ट्रक्शन होता है, क्वालिटी ऑफ लेदर मैटर्स, जो क्वालिटी ऑफ लाइनिंग होती है अंदर वो मैटर करती है। अब जो सस्ते जूते हैं ऑल्डो, ड्यून, वो लोग रेक्सीन की लाइनिंग लगाते हैं, तो वो 2 साल बाद वो लाइनिंग में से वो मटेरियल बाहर आने लगता है और वो बहुत गंदा दिखता है। बट इफ़ यू यूज़ दीज हाई क्वालिटी शूज़, वो लाइनिंग के अंदर लेदर की होती है। So if you are in that bracket where you are making anywhere 2.5 lakhs per month post tax, you should definitely invest in buying a high quality shoe. Now the question is, which are these brands? देखिए इंडिया में ये ब्रांड्स बड़ी आसानी से नहीं मिलते हैं। आई एम इमेजिन कि अगर आप इस ब्रैकेट में हैं तो आप ज़रूर कभी ना कभी ट्रैवल करते होंगे बाहर। अब बाहर से कौन से ब्रांड्स आपको देखने चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। दिस इज़ ब्रांड कॉल्ड डुकल्स। डुकल्स हैव बीन मेकिंग शू फॉर डेकेड्स एंड डेकेड्स। हैंडमेड शूज़ होते हैं बहुत हाई क्वालिटी फ्रॉम इटली। डुकल्स के जूते देखिए, हर तरीके के जूते मिलेंगे और बहुत ही एस्थेटिकली ब्यूटीफुल जूते मिलेंगे और दुनिया में इनका नाम जाना जाता है। देखिए दुनिया में ऑल्डो को फैशन शूज़ के के तरीके से लोग देखेंगे, बट डुकल्स की रिस्पेक्ट अलग है। डुकल्स इज़ अ नेम यू कैन लुक एट। द अदर ब्रांड यू कैन लुक एट इज़ बर्विक। Berwick shoes are also very highly constructed, great in aesthetic and बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग जूते होंगे, कंफर्ट भी बहुत नेक्स्ट लेवल मिलेगा। सो डुकल्स एंड बर्विक, ये जो जूते हैं इनकी जो प्राइस रेंज होगी वो अराउंड 20 to 25,000 में आपको बहुत अच्छा पेयर मिलेगा। बट देयर इज मोर टू एक्सेस। इफ़ यू आर समवेयर हु इज मेकिंग 3 to 4 lakhs पर मंथ, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए एक बेटर क्वालिटी जूते में जो आपका 20-25 साल टिकेगा। अब एक मेरे दोस्त थे, उन्हीं ने मुझे आइडिया दिया कि भाई दीपक आप क्यों नहीं बताते, और फिर हमने ये सवाल पूछा लोगों से, आप हाँ, तो हमने उन लोगों को ऑफ़र किया भाई सवाल पूछे इसके बारे में, विच इज़ वाई ऑल दीज क्वेश्चन। सी द थिंग इज़, क्यों आप चाहेंगे कि एक मेरा 20 साल जूता चले? द पॉइंट इज़, इवन इफ यू बाई ऑल्डो, कितने स्टाइल्स आप खरीद सकते हो? सेम स्टाइल्स होते हैं ना। एक ब्लैक पेनी लोफर ले लोगे, एक ब्रोग्स, विंग टिप ब्रोग्स, ऑक्सफोर्ड्स ले लेंगे आप मॉन्क्स ले लेंगे, इसके अलावा तो आप कुछ नहीं लेंगे ना। और वही टूटेगा, वो अंदर से उसकी लाइनिंग दिखेगी, गंदा दिखेगा, लो क्वालिटी दिखेगा, और 3 साल बाद फिर लेंगे। तो जो ऑल्डो आपका 2 साल में ख़राब, 3 साल में ख़राब होने वाला है, 3 साल बाद फिर लोगे, 15-15 हज़ार 30 हज़ार के जूते हो गए। तो ऐसा जूता सीधे एक बार क्यों ना लें जो 30 हज़ार का आज मिलेगा, लेकिन वो 15 साल चलेगा। आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी, 15 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, और यू विल नॉट कंप्लेन। बिकॉज जब लेदर ब्रेक इन करता है ना, जब उसमें जो आपका शेप लेता है पैटी, वो बहुत खूबसूरत हो जाता है, और उस लेदर की क्वालिटी भी नेक्स्ट लेवल होती है। ओके, although and these people, they will never make that quality of shoe and that quality of construction. So this is the reason why you should go for a shoe that will last very long. See, so मैंने एक दिन अपने फ्रेंड को बोल दिया कि even my next generation can take these shoes from me. It's an expression to communicate the quality of construction of a shoe, not necessarily to transfer it to them, but how the shoe is really made, how awesomely. लाइक जैसे Patek Philippe करके एक ब्रांड है घड़ियों की, इनकी टैगलाइन ही यही है, यू नेवर ओन अ Patek Philippe, यू ओनली टेक केयर ऑफ इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। दिस अंडरस्कोर्स द ब्यूटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। मैंने आपको 20 से 25 हज़ार के प्राइस रेंज में 2 ब्रांड्स बताए, डुकल्स, बर्विक। आँख बंद करके जूते थे। नाउ इफ़ यू कैन अफोर्ड एनीथिंग अबव 30,000 रुपीज़, तो 30 से 40 हज़ार के रेंज में अगर हम देखें, एक स्पेनिश ब्रांड है जो 100 साल से ऊपर से जूते बना रहे हैं, एंड दे मेक अमेजिंग शूज़। उनकी जो लास्ट जो कंस्ट्रक्शन होता है नैरो होता है, तो अगर आपके पैर नैरो हैं तो उनके जूते खरीदिए, और जूते इतने सुंदर लगेंगे कि लोग पूछ के मतलब आपको परेशान कर देंगे कहाँ से लिए। दिस ब्रांड इज कॉल्ड कार्मीना। कार्मीना शूज़ आर आउटस्टैंडिंग। देयर इज अनदर ब्रांड फ्रॉम स्पेन कॉल्ड TLB के जूते भी ले सकते हैं, सिमिलर प्राइस। फिर उससे भी ऊपर अगर आप जाना चाहते हैं तो ब्रिटिश ब्रांड्स आए हैं। ब्रिटिश ब्रांड है जिसका नाम है क्रॉकेट एंड जोन्स। क्रॉकेट एंड जोन्स पूरी दुनिया में मशहूर है फॉर ग्रेट क्वालिटी शूज़, गुड लुकिंग ब्यूटीफुल शूज़ दैट विल लुक न्यू एंड अमेजिंग इवन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। क्रॉकेट एंड जोन्स यहाँ नहीं मिलेंगे, आपको दुबई में मिलेंगे, आप यूरोप में कहीं भी जा रहे हो क्रॉकेट एंड जोन्स मिलेंगे। फिर ऑल्डन शूज़ मिलेंगे ब्रिटेन में, फिर मल्टीपल अदर ब्रांड्स। तो दैट्स व्हाट इट इज़।
अब मैं लोग कहते हैं कि मैं 50,000 रुपये खर्च कर रहा हूँ, तो वाई शुड आई बाय कॉफर्ड एंड जोन्स, वाई शुड आई बाय समथिंग लाइक अ बाली एंड लेट्स से कनाली एंड गुची शूज़, फेरागामो शूज़। देखिए, नथिंग रॉन्ग विद फेरागामो, बाली एंड कनाली एक्सेट्रा, वो देर वेल मेड शूज़। हुगो बॉस ले लिए, वेल मेड शूज़, बट द पॉइंट इज these brands, big brands, they get their shoes outsourced, okay? और रोज़ वो एवरेज जूते होते हैं, उनका कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी एवरेज होती है। वो एक बड़े एक कनाली में जाके ले रहे हैं, दैट्स वाई इट्स ओके। तो अच्छे हैं, अगर आप ले रहे हैं, कनाली का ब्रांडिंग है, आपके लिए ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, अच्छी बात है। लेकिन जो लोग जानते हैं, क्रॉफर्ड एंड जोन्स स्टैंड्स अबव कनाली। प्राइस में कनाली विल बी अबव क्रॉफर्ड एंड जोन्स, बट अगर क्रॉफर्ड एंड जोन्स पहना हुआ देखा तो भाई इसको तो पता है जूता क्या है। सो दैट्स व्हाट इट इज़। इन ब्रांड्स में जो जूते हैं उनके मोस्टली ब्लेक कंस्ट्रक्शन होता है, ब्लेक स्टिचिंग होती है एक तरीके से। वो इट्स अ गुड कंस्ट्रक्शन है। गुडियर बेल्टिंग एक अलग ही लेवल है। अगर क्रॉफर्ड एंड जोन्स का जो जूता है वो कनाली बेचेगा तो 1.5-2 लाख रुपए का बेचेगा, ट्रस्ट में। गुची बेचेगा 1.5-2 लाख में बेचेगा। गुची के यहाँ ये है कि जूते बहुत सुंदर मिलेंगे, बहुत ही एक अलग एस्थेटिक, अलग ही लेवल का होगा, और शायद आप खरीदेंगे भी नहीं। तो द पॉइंट इज़ कि साल्वातोर फरागामो में आप जाके 80,000 खर्च करें। मैं उससे पहले बोलूँगा कि प्लीज़ लुक एट कार्मिना। जो कार्मिना आपको 40K में मिल जाएगा ना, वो ही आपको साल्वातोर फरागामो में उससे कम क्वालिटी का एक्चुअली 90,000 का 80,000 का मिलेगा। सो दैट्स व्हाट रियली इट इज़, यू नो, बाय थिंग्स from people who have been making those things for hundreds of years. उनके पास जो नो हाउ है, जो एक्सपीरियंस है, जो प्रोडक्ट को बनाने की तरकीब है और टेक्निक वो किसी और के पास नहीं होती। That's why you want to go to people who are masters of it. जूता ले रहे हैं, please take it from the brands that have been making only shoes. Similarly, if you are buying, this logic exists everywhere. If you're buying a watch, we will do a separate video on it. But restricting it to shoes, I request all of you who want to look better, and feel great about yourself, you just have to invest in 2 or 3 max different pairs of shoes. For example, a black shoe, black lace-up brogues, which are very formal, होने चाहिए. You should buy that. Spend 30K on it. वो आपको 15 साल चलेंगे। ये जूता एक बार नहीं रोएगा। मेरी मम्मी कहा करती थी, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। और वो एक बार रोएगा, बहुत दिनों बाद रोएगा, मतलब सालों बाद रोएगा। So that's what really it is. Then buy a tasseled loafer, like a TLB tasseled loafer or a Ducals tasseled loafer. 25,000 में आएगा और वो भी बहुत साल चलेगा, बहुत कंफर्टेबल होगा, ब्यूटीफुल होगा। एंड देन बाय अ सुएड शू। सुएड जो होती है ना, उसका कैजुअल का लुक ही अलग होता है, अनपैरेलल्ड होता है, इतना माइंड ब्लोइंग होता है। जस्ट बाद में थैंक यू बोलोगे आप मेरे को कि दीपक, थैंक्स सो मच फॉर गाइडिंग मी टू दिस। एंड अक्रॉस दीज ब्रांड्स ये सारी होती हैं, एंड यू डोंट हैव टू बाय दीज थिंग्स इन वन गो, राइट? इन्वेस्टिंग के तरीके से देखना चाहिए कि भाई मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया, ये चीज़ मेरे को 15 साल चलेगी, 10 साल चलेगी, 8 साल चलेगी। एक बार मान लो ब्रोक्स खरीदिए $30,000, 2-3 साल बाद बोनस आया, फिर अपने आप को गिफ्ट दिया, 25,000 के डूडल्स खरीद लिए। फिर उसके बाद 1-2 साल बाद फिर बोनस आया, अपने आप को गिफ्ट किया। दूसरे दुनिया के लिए करते हो ना, अपने लिए भी करो। अपने आप को गिफ्ट दिया 40,000 के, दूसरी चीज़ एक बढ़िया टैसल लोफर खरीद लिया और स्वेड वाले कुछ जूते खरीद लिए। तो बस 3 करने हैं, और वो 3 विल मेक यू स्टैंड आउट. You will be known for your taste. Your feet will be very comfortable, more comfortable than they have ever been in all the conventional brands that you've been going to. But again, it will depend on your comfort. कि भाई इतने जूते, इतने पैसे मैं जूते में क्यों डालूँ? But the way I look at it, भाई पैर तो मेरे ही हैं और मैं पूरे दिन जूते पहनता हूँ, तो I want to make my feet comfortable. मेरे पैर मेरी सबसे अमेजिंग चीज़ है, because these feet are the ones that take me everywhere. These feet are the ones that make me mobile. These feet are the ones where I stand. These feet are the ones where I stand and grow taller, literally and figuratively both.
तो पैर बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द फीट. So those are all the questions around shoes. हम फिर से आएंगे, we'll bring you something around other aspects of a gentleman's attire. It will be shoes, it will be clothing, it will be shirts, it will be watches, it will be many other things. Thank you.